بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا نام تنزیلہ ہے۔ میری پیدائش کے کچھ ماہ بعد میری ماں نے میرے والد سے طلاق لے لی تھی۔ پھر ابو نے ہی مجھے ماں اور باپ بن کر پالا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ میرے والد کا اچھا خاصا بزنس تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی جب ایک روز میں اپنی ملازمہ کے ساتھ ایک بڑے پلازا میں کچھ خریدنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ خریدنے کے بعد جب رقم کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر پہنچی تو ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوبصورت روح تھا، کوئی امیر زادہ لگ رہا تھا۔ میں نے رقم ادا کی اور جب تک میں وہاں کھڑی رہی وہ مجھے بغور دیکھتا رہا۔ میں اس کی طرف توجہ دیے بغیر شاپنگ سینٹر سے نکل آئی۔ میں اور میری ملازمہ کے ساتھ پاس ہی ایک دہی بھلے والی شاپ تھی، دہی بھلے کھانے اور ہم گھر آ گئے۔ اس کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ایک شام ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے جانے سے پہلے ہی میری ملازمہ نے فون اٹھایا۔ اس وقت وہ میرے پاس آئی اور بولی، بی بی صاحبہ آپ کا فون ہے۔ اور وہ میں اپنا نام پیدا بنا رہی ہے۔ میں کسی عدنان کو نہیں جانتی تھی۔ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے بابا کے آفس سے کسی نے کال کی ہو سکتا ہے بابا کے بارے میں کچھ پوچھتا ہو، کیونکہ ان دنوں بابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بابا کا موبائل آف ہوتا تو اکثر گھر والے نمبر پر کال آ جاتی تھی۔ بابا نے ایمرجنسی کے لیے یہ نمبر دیا ہوا تھا، وہی بند کیا اور فون سننے کے لیے چلی گئی۔ میں نے ہیلو کہا تو دوسری طرف سے کسی لڑکے نے سلام کیا اور بولا، میڈم میں فلاں پلازے سے بات کر رہا ہوں، ایک ہفتہ پہلے آپ نے ہماری شاپ سے کچھ شاپنگ کی تھی۔ خریداری کی پیمنٹ ادا کرتے وقت آپ کے کچھ پیسے وہی کاؤنٹر پر رہ گئے تھے۔ وہ 5000 والے نوٹ تھے، شاید آپ اس دن جلدی میں تھی۔ بڑی مشکل سے آپ کا نمبر اور ایڈریس ملا ہے۔ کیا یہ پیسے آپ کے ایڈریس پر پوسٹ کر دوں یا آپ خود لینے آئیں گی؟ اگر آپ خود آ جائیں تو میڈم ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی کیونکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ترکی سے جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ یہ آوارہ مزاج لڑکے جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اتنے دن بعد اس ہیرو کو مجھ سے رابطے کی خاطر میں بہانہ اچھا سوچا تھا۔ اب مجھے ڈر تھا یہ کہیں میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے۔ خیر اس کے بعد اس نے دوبارہ فون نہ کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اس طرح کے لڑکے تو پیچھے ہی پڑے جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میں گیٹ کے پاس تھی۔ پوچھا، بابا جی کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگے، بیٹی میں بہت غریب ہوں، جہاں کام کرتا تھا انہوں نے نکال دیا ہے۔ مالک کہتا تھا تم اب بوڑھے ہو گئے ہو، اب ہمارے کسی کام کے نہیں ہو۔ بیٹی میں ایف اے پاس ہوں، ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا، بابا جی کو آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ وہ بولا، بیٹی بوڑھاپے میں آرام قسمت والوں کو ملتا ہے، حالات سے مجبور ہوں، جب کوئی کرنے والا نہ ہو خود محنت کر کے پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ کپڑے صاف ستھرے تھے اور حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کا کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہوگا۔ نہ جانے کن حالات میں ملازمت تلاش کرنے نکلا تھا۔ میرے احساس دل نے بابا جی کی طرف بڑھایا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، بیٹی میں بھکاری نہیں ہوں، مانگنے نہیں آیا، میں تو ملازمت کی تلاش میں گھوم رہا ہوں۔ ملازمت مل جائے
आज यही आपकी मेहरबानी होगी। मैंने एक बार फिर इन्हें पैसे देने की कोशिश की और कहा कि आप ये रख लें, आपके काम आएंगे और मुलाजमत भी मिल जाएगी, मगर इन्होंने एक बार फिर इनकार कर दिया। अभी ये बात सोच ही रही थी कि हमारा चौकीदार आ गया। मैंने चौकीदार को ताकीद की कि इन बाबा जी से इनका फ़ोन नंबर अगर कोई है तो ले लो, या फिर जो राब्ते का ज़रिया हो मालूम कर लो। बाबा घर आएंगे तो मैं इनसे बात कर लूँगी। फिर सोचा शायद चौकीदार ज़्यादा परवाह ना करे, तभी बूढ़े आदमी को कहा, ऐसा करें आप कल शाम को आ जाएं, रात में अपने वालिद से बात करूंगी, अगर वो आए तो कल आपको इनसे मिलवा दूंगी। वो दुआएं देता चला गया। शाम को अब्बू आए तो मैंने इस बूढ़े शख्स का जिक्र किया और बताया कि वो भिखारी नहीं था, बस इसे मुलाजमत की ज़रूरत है। वालिद साहब ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी और कहा, प्लीज़ बाबा आप इन्हें काम पर रख लें, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। वालिद साहब ने मेरे चेहरे के तसरात देखे और फिर बोले, ठीक है बेटी, कल शाम को मिलूंगा और कहीं दफ्तर या फैक्ट्री में जगह निकाल लूँगा। अगले रोज़ शाम को मुकर्ररा वक्त पर बेल हुई। वालिद साहब घर पर थे। चौकीदार ने बताया, कल वो बूढ़ा शख्स आया है। वालिद साहब ने कहा, इसको अंदर ले आओ। सफ़ेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग चेहरे पर शराफत लिए अंदर आया। अबू ने एक नज़र में पहचान लिया, ये अच्छे ख़ानदान का है। दो चार बातें करके कहा, बाबा जी क्या आप मेरे घर पर रहना पसंद करेंगे? मेरी बेटी की माँ नहीं है, आया के साथ रहती है। मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना पड़ जाता है। इस तरह घरेलू मसाइल दरपेश होते हैं। ये फ़ोन करती रहती है। नौजवान मुलाजिम को मैं घर के अंदर नहीं आने देता। चौकीदार गेट पर और ड्राइवर भी घर से बाहर होते हैं। एक मुलाजमा है, वो भी शाम के वक्त अपने घर चली जाती है। आप घर में रहें तो मुझे फिक्र ना होगी। बुजुर्ग ने ज़रा सा वक्त कहा, मेरी भी एक बेटी थी, इसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। ना इसे बेटी की फिक्र थी और ना ही मेरे बेटे की। हर वक्त अपनी माँ की जुदाई के गम में रहती थी। 7 वर्ष की उम्र में इसको बिजली का करंट लगा। इस वक्त वो घर में अकेली थी और मैं काम पर था। हमसाये के जिम्मे लगा कर जाता था कि वो मेरी बेटी का ख्याल रखे, मगर वो ख्याल ना रख सकी। बेटी का ख्याल रखेंगी मगर वो ख्याल ना रख सकी। मेरी बेटी फौत हो गई। ये कहते हुए इनकी आंखों में आंसू भर आए। आपकी बेटी मेरी बेटी जैसी है। उन्होंने मेरी जानिब इशारा किया। जोर के दुखी होने पर मैं भी अबदीदा हो गई, क्योंकि मैंने भी माँ की जुदाई का दर्द सहा था। अब्बू ने मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी, मेरी परवरिश की थी। मेरी वालदा से इनकी मोहब्बत की शादी भी यूनिवर्सिटी दौर में ही इन्होंने की। एक दूसरे को पसंद कर लिया था और शादी का फैसला भी कर लिया था, मगर घर वाले ना माने। पहला आखिर सारे घर वालों की मुखालफत के बावजूद अपनी पसंद के लड़के से शादी की, जिसमें इनके जाने किस की वजह से झगड़े रहते। पहला आखिर मामला तलाक पर ख़त्म हो गया। इन दोनों में सिर्फ 1 साल की अम्मी को मुझ पर भी तरस न आया और वो मुझे वालिद के हवाले करके चली गई। इनके जाने के बाद वालिद साहब ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला। फिर काम की मसरूफियत की वजह से अब्बू के घर मुलाजमत थी, वो मुझे देखा और ना मिलती थी, क्योंकि इसका मुझे नहीं। जब 5 साल की हो गई, अब्बू ने स्कूल दाखिल करा दिया और छोड़ने और लेने जाते थे। इन्होंने बाप की शफकत और माँ का प्यार दोनों दिया। माँ की बच्ची थी, लेकिन अब्बू की मुतवाज़न की सब मैं खुद भी नॉर्मल शख्सियत की मालिक थी, लेकिन माँ की कमी हर कदम पर महसूस होती थी। मैं घरेलू किस्म की लड़की थी, स्कूल से घर, फिर घर से कॉलेज, कहीं और अब्बू के बगैर आती जाती ना थी।
बस कभी कभार मुलाजमा के साथ शॉपिंग करने चली जाती थी। मेरी सारी दास्तान सुनने के बाद बाबा जी ने हमारे घर मुलाजमत के लिए हामी भर ली। वाले साहब भी खुश थे। अब वो मेरी नहीं परेशान नहीं रहे थे। अब बाबा जी का नाम अजीम था। बुजुर्ग इतने शफीक और मेहरबान होते हैं कि हर उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। मेरा भी अजीम बाबा के साथ दिल लग गया था। वो घर के कामों में मदद करते और फारिग वक्त में मेरे साथ बहुत सारी बातें करते, हंसी मजाक भी किया करते थे। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी, कामों में मदद करते और फारिग वक्त में मेरे साथ बहुत सारी बातें करते, हंसी मजाक भी किया करते थे। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती। वो नेकी और भलाई के बारे में भी बातें किया करते थे। बाकी वक्त हमारे बंगले की देखभाल भी मसरूफ कर देते थे। इनके आने से यूं लगा था जैसे हमारे घर के मुर्दा माहौल को तवाना और नेक रूह आ गई हो। माँ के बगैर मौजूद होने के एहसास से जो घर खाली खाली लगता था वो भरा भरा महसूस होता था। वाले साहब के इस फैसले पर मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने इनको फैक्ट्री में मुलाजिम रखने के बजाय घर में पनाह दे दी थी। बाबा की हैसियत हमारे यहाँ घर की एक फर्द की सी हो गई। अब वाले साहब ने फैक्ट्री को गई। अब वाले साहब के जिम्मे कोई काम नहीं था क्योंकि इन बाबा जी ने सारे काम संभाल लिए थे। खास तौर पर वो हमारे घर की निगरानी के फराज अंजाम देने लगे। मैं जल्द बाबा से मानूस हो गई। मुझे तो वो पहले दिन से अच्छे लगे थे। दिल चाहता था कि इनको अपने पास बैठाकर 20 इनकी बातें सुनती रहूं। इनको अक्सर यही फिक्र रहती मैंने कुछ खाया कि नहीं। वो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखते थे। बाबा खाना पकाना भी जानते थे। मैं मना करती तो कहते बेटी किचन को नौकरों पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि अपना खाना खुद अपने हाथ से पकाना चाहिए। वो अपना खाना खुद बनाना पसंद करते थे। किचन को साफ सुथरा रखते। इनको देखी मैं भी खाना पकाने में दिलचस्पी लेने लगी। वो बिरयानी बहुत अच्छी बना लेते थे। मैंने इनसे बहुत सीखा था। मुझे तो कुकिंग का शौक ही नहीं था मगर वो कहते बेटी खाना पकाना लाजमी सीखो। अब तुम्हारी भी शादी होने वाली है। अगर तुम्हारे शौहर को नौकरों का खाना पसंद ना आए और वो तुम्हें कहे कि तुम खुद मेरे लिए खाना बनाओ फिर क्या करोगी? बेटी वैसे भी शौहर को अपनी बीवी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने भी बुरा नहीं मनाया था। सच कहूँ तो मुझे आज तक किसी ने इस तरह से नहीं समझाया था जैसे वो समझाते थे। मेरी ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो गई थी। अब मैं जहाँ भी जाती बाबा अजीम को साथ लेकर जाती शॉपिंग के लिए या फिर भी किसी क्लास फेलो के कार में। जब तक वहाँ रहती वो गाड़ी में बैठे रहते। वाले साहब को पसंद ना था कि मैं नौजवान मुलाजमों के साथ कहीं जाऊँ। तभी घूमने फिरने के बजाय घर में रहा करती थी। जब से बाबा अजीम आए थे वाले साहब ने घूमने फिरने की इजाज़त भी दे दी थी। अब मैं सहेलियों के साथ तफरीह के लिए पार्क या रेस्टोरेंट भी जाती थी। बाबा के हमरा जाने से मुझे कोई उलझन नहीं होती थी बल्कि सुकून महसूस होता था। इनकी शख्सियत ऐसी थी तो उसका भरपूर एहसास मिलता था। एक रोज़ मैं अचानक ड्राइविंग रूम में गई। बाबा और वालिद साहब की बातें सुनकर हैरान रह गई। बाबा अजीम एक माह की छुट्टी के लिए इजाज़त तलब कर रहे थे। 2 माह में उन्होंने हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया था। वालिद साहब ने इन्हें खा दी और इनको छुट्टी मंजूर कर ली। के जाने से मैं बहुत उदास हो गई थी लेकिन उन्होंने जाना ही था। अपने घर की याद इनको सता रही थी। वो दोबारा आने का कहकर चले गए। मैं काफ़ी दिन उदास रही थी जैसे मेरी कोई ख़ास चीज़ खो गई हो। ये 1 माह का वक्त बहुत मुश्किल से गुजरा था। अजीम बाबा को गुजर चुका था। मैं बहुत खुश थी कि अब वो आ जाएगा। अजीम बाबा कोई मामूली आदमी ना थे। वो इस शहर के रईस आदमी थे। और जिस माल प्लाजा में जाकर मैंने शॉपिंग की थी
वो इसके मालिक थे। इस मरतबा वो अपनी कीमती गाड़ी पर आए और अब्बू से मेरा हाथ मांगा। बेटा मैं भी साथ था। वही नौजवान था जिसने शॉपिंग मॉल में मुझे बगौर देखा था और फिर पैसों के बहाने फ़ोन किया था। अब आती हूँ असल किस्से की। शॉपिंग मॉल में मुझे बगौर देखा था और फिर पैसों फ़ोन किया था। अब आती हूँ असल किस्से की तरफ। अजीम बाबा का असल नाम मियाँ आलमगीर था और बेटे का नाम अदनान था। अदनान ने मॉल पर शॉपिंग करते हुए मुझे पहली नज़र देखा तो पसंद कर लिया। वो अपने वालिद को कहा कि मैं लड़की को देखे बगैर शादी नहीं करूँगा। इस बात पर मामला लटका हुआ था। कहा कि मैं भी जब तक लड़की का ख़ानदान इसका चाल चलन ना देख लूँ तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। मैंने खुद जवानी में यही गलती की थी। एक नज़र लड़की को देखा और दिल को भाई और बगैर सोचे समझे शादी कर ली थी। इसने निभाना और जब तुम साल भर के थे वो तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने भी इस शर्त पर इसका जो मैं इतना छोटा बच्चा संभाल ना सकूँगा तो खुद वापस कर दूँगा। अगर मैंने फिर भी बेटा माँ के हवाले ना किया, जिन मुश्किल हालात में पाल पोस कर तुम्हें जवान किया वो मैं ही जानता हूँ। अब अपने इकलौते बेटे की शादी के मामले को इसके जज्बातीपन और तजर्बे की भेड़ नहीं चढ़ाने दूंगा। बाप का मौक़िफ़ सुनकर इनको की शराइत को अदनान ने मान लिया। लड़की को देखने पर के लिए बाप बेटे ने एक तरकीब सोची और फिर मियाँ आलमगीर ने बेटे की मोहब्बत की खातिर मुलाजिम का रूप धार लिया। और फिर अल्लाह ताला ने जोड़ी मिलानी थी तो इनका रास्ता आसान किया कि हमारे घर रहकर इन्होंने मेरी आदत और वार का मुताला कर लिया। इनका ख्याल था कि मैं एक अमीर आदमी की इकलौती लड़की हूँ, साथ ख्याल खुद सर हो सकती हूँ। माँ के बगैर किसी तरबियत भी ना मिली होगी। अजीम बाबा के ख्याल में अमूमन ऐसे घर की लड़कियाँ अच्छी बहू साबित नहीं होती। वो बेटे की शादी को कामयाब और घर को आराम सुकून का गहवारा देखना चाहते थे। कहते हैं कि सांप का डसा भी डर और इधर अब्बू का भी इस मामले में कुछ ऐसा ही डर था। और अब्बू का भी इस मामले में कुछ था। मोहब्बत की शादी करके पछताना पड़ता था, जबकि अजीम बाबा को गुमान था कि अदनान और मुझ में कहीं फ़ोन पर मोहब्बत वाला ड्रामा ना चल पड़ा हो। तर अब्बू को मेरी जिम्मेदारी संभालती पड़ी तो मालूम हुआ कि बिन माँ के बेटे की परवरिश कितनी खट्टान होती है। दूसरी शादी भी मेरी खातर ना की थी, कर आया ना थी तो ना जाने मेरा क्या होता। जब अजीम बाबा ने तमाम अहवाल बताकर अब्बू से माज़रत तलब की और बयान दुआ की और वालिद साहब ने चंद दिन सोचने का वक्त मांगा। कुछ दिन बाद मेरी रजामंदी से वालिद साहब ने इनके बेटे से मिलना भी अपने बाबा की तरह सुलझा हुआ और अच्छे अखलाक वाला था। और फिर वालिद साहब ने हाँ कह दी। यूँ मेरी शादी अजीम बाबा के बेटे अदनान से हो गई। अदनान की दिल्ली मुराद पूरी हो गई और अजीम बाबा को ऐसी बहू मिल गई जो इनके तस्वर में थी। कभी खसारे में ना रही। अदनान इनके इकलौते बेटे थे और मैं अब्बू की इकलौती बेटी थी। वालिद और मेरे एक दूसरे से नाता जोड़कर बहुत खुश थे और मैं अदनान को पाकर खुश और मुतमईन थी, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं, शायद ही कोई इन जैसा हो। आज अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पा ली। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।